हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट व्हाट एंड व्हाई ऑफ डीबीएमएस, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है एंड व्हाई डू वी रिक्वायर टू स्टडी इट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन ऑफ what is DBMS. So first of all let us pick the first part of this word, that is DB, that is database. Okay, so what is the meaning of database? So database simply means the collection of interrelated data. For example university database, मतलब कि आपकी यूनिवर्सिटी का एक डेटाबेस होगा जहाँ पे स्टूडेंट्स के इंफॉर्मेशन, हॉस्टल्स के इंफॉर्मेशंस, प्रोफेसर्स के इंफॉर्मेशंस, अदर इंफॉर्मेशंस लाइक दी वेयर आर द बिल्डिंग्स, सो अबाउट द डिपार्टमेंट्स एक्सेट्रा। तो ये सारा जो डेटा है वो इंटर रिलेटेड डेटा है, right? Your hostel data, your professors data, students data, then all the departments data, this is interrelated data, right? आप स्टूडेंट्स का डेटा, क्रिकेट के डेटा और होटल का डेटा, रेस्टोरेंट्स का डेटा, इन तीनों को मिक्स करके स्टोर नहीं करना चाहोगे, राइट? सो व्हाट इज अ डेटाबेस? इट इज नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड data. Okay, and what is the example? Example is the university database. Okay, so आपकी यूनिवर्सिटी का एक डेटाबेस होगा जहाँ पे अलग अलग इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्सिटी विल बी देयर. ओके, so what can be the different information about the university? So there might be students information, right? Then there will be professors information, then there will be departments information, then there will be hostels information etc, right? So ये सब information जो है that is interrelated, and all this information together, a collection of interrelated data is known as database. okay, जहाँ पे आपका data stored होगा. Now each of these things within themselves will have different attributes. What are attributes we will talk later, but just to give an example, for example डिपार्टमेंट का नेम होगा हर एक डिपार्टमेंट का, there will be a phone number, there will be a location, there will be the HOD information etc. okay, so this is a database. Now let's come to the term that is database management system. So what is database management system? So database management system एक software है which allows us to handle this data efficiently and conveniently. Okay, so database management system is a software which allows us to handle this database. So what do I mean by this? So any database, okay, a database management system software can be used to handle the data of university, okay, a database of university or a database of let's say cricketers etc, right? So database management system is the software which allows us to handle this database conveniently and efficiently, right? Now there are three terms in this definition which I want to answer. First of all, handle. What do we mean by handle? So this software will allow us to handle this database. So it will allow us to perform CRUD operations. What is the meaning of that? Create, read, update or delete the data, right? CRUD means create data. Let's say I want to add information about 50 new students which have enrolled, let's say in a coaching institute, right? So that is creating a data. Then R is reading a data, means let's say I want to get the name of all the cricketers who scored more than 100 runs twice in the last 10 matches. So that is reading the data. Then updating the data. For example HOD कोई एक डिपार्टमेंट के चेंज हो गए हैं, so we need to update that data. Then डिलीट दैट डेटा. लेट्स से एक एम्प्लॉय का डेटाबेस है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे किसी एम्प्लॉय ने छोड़ा है एंड उनका डेटा डिलीट करना है, सो दैट इज डिलीटिंग द डेटा. सो हैंडल द डेटाबेस मीन्स आइडियली परफॉर्मिंग द क्रूड ऑपरेशंस, ओके, क्रिएटिंग, रीडिंग, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग द डेटा. ओके,
Now along with this, it allows a lot more functionalities. Okay, so like concurrent access it allows, right? It concurrent access of users. What is the meaning of that? We'll have a look at that in a while. Okay, but that is one of the thing. Then it allows in handling different keeping the database consistent, etc. Okay, but ideally handle the data means we want to create the data, read the data, update the data, delete the data, right? But along with that, it needs to fulfill a lot of other functionalities as well. Okay, now what is the meaning of conveniently? So for example, if I it should be convenient for a naive user, right? Because everyone is not in the computer science domain, or not everyone does not have very much detail, so it must be convenient to use. Okay, and what is the meaning of efficiency, right? So efficiently means it should give us the data quickly, right? If I want the let's say I am booking a ticket on IRCTC, and if I put the source and destination and the date, it does not take 20 minutes to give me the details of the trains, right? It gives me quickly. So the data, it must give us quickly. Okay, so by efficiently means it must perform operations quickly, right? Now if it wants to perform operations quickly, so there are complex algorithms used beneath. Okay, complex algorithms are used by this software, database management system software. So what do I mean by that? For example, when I want the name of all the batsmen who have scored a double century in the last 10 matches, I should be writing a simple query, which we will look in further lectures. But उसके पीछे complex algorithms work हो रहे होंगे, which we do not see. We just write the query and we get the data. Okay, so there are complex algorithms are used. And what's the way to handle complexity? The way to handle complexity is abstraction, right? So there is a layer, there are layers of abstractions in database management system. Everything there are a lot of things done beneath by the software. Everything is not shown to us. Okay, so this was about what is database management system. I hope it is clear to you. Now let's come to the topic, why do we need to study it? Okay, so let's say if we do not have any database management system such software, okay, so now we will be storing the data somewhere. कहीं तो हम data store करेंगे, फिर उस पे हमें crude operations भी perform करने होंगे, right? So उसको हम कैसे करेंगे? So that would be done by the traditional file system. Okay, traditional file system. Okay, so what do I mean by traditional file system? जैसे कि हम C programs लिखते हैं to access the files, right? Read and write on the files. Similarly, what we can have is, we can have files in which the data is stored, right? Now there will be some application programs written, application programs, जैसे कि हम C में C++ में programs लिखते हैं to write or read on the files, right? And then there will be users who are using this application programs, and through this application programs they can write or delete or update or create the data, right? This is the system. Like there is no DBMS involved, right? So इसमें problem क्या है? Okay, so let's write down the some of the disadvantages of traditional file system. Okay, so the first disadvantage is data redundancy and inconsistency. Okay, so what do I mean by that? See, data redundancy means also one more thing. See, I cannot write each and every word on the board, right? So a lot of things I will be explaining. So if you want to note it down, you just pause the video and note it down in your own words in the notebook. Okay, it will help you while revision.
सो द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। सो रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, सेम चीज़ बार बार रिपीट करना व्हेन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अब जब बार बार चीज़ें रिपीट होती है ना, तो बार बार अगर हम सेम डेटा स्टोर कर रहे हैं ना, तो उससे एफिशिएंसी भी कम होती है एंड एरर भी ज़्यादा हो जाता है, एरर चांसेस। ओके, एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एरर चांसेस आर ऑल्सो मोर। हाउ? लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. So let's say there are different files used to store different informations and let's say we have a university database जिसमें कि एक फाइल है जिसमें कि you are storing information about students in hostels. Okay, students in hostel. Okay, so hostel में जैसे कोई किसी पर्टिकुलर रूम में कौन सा स्टूडेंट है, उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा, इसके लिए आपने एक लेट्स से फाइल 1 क्रिएट की है, राइट? There is another file which is file 2 which is let's say about the information about the students in let's say CSE department. Okay, so अब यहाँ पे भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होगी, यहाँ पे लेट्स से उनके ग्रेड स्टोर होंगे, देन उनका सेमेस्टर स्टोर होगा, देन लेट्स से उनका नेम स्टोर होगा एंड सो ऑन. लेट से एक एट्रीब्यूट ऐसा है जो कि दोनों में स्टोर्ड है, दैट इज मोबाइल नंबर. ओके, मोबाइल नंबर स्टूडेंट का यहाँ पे भी स्टोर्ड है एंड मोबाइल नंबर स्टूडेंट का यहाँ पे भी स्टोर्ड है, राइट? आई एम taking only 2 files for now. Okay, there might be I am taking only an example where same data is repeated in 2 files. Now same data may be repeated in a lot of files as well. Okay, depending upon example. अब ये जो स्टूडेंट का मोबाइल नंबर यहाँ पे भी स्टोर्ड है, यहाँ पे भी स्टोर्ड है, लेट से, तो ये रिडंडेंट डेटा हो गया. अब इससे एफिशिएंसी टाइम के टर्म्स में कैसे कम होगी? लेट से स्टूडेंट का मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो हमें इस फाइल में भी अपडेट करना पड़ेगा, इसमें भी अपडेट करना पड़ेगा, तो टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा टाइम लगेगा. सेकेंड इज एरर के चांसेस ज़्यादा है. लेट से इस स्टूडेंट का मोबाइल नंबर 5 फाइल्स में था, अब जब आप अपडेट कर रहे थे 4 फाइल्स में सक्सेसफुली अपडेट हो गया, एक में नहीं हुआ, देन दैट इज एरर, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस इज डेटा रिडंडेंसी एंड डेटा रिडंडेंसी लीड्स टू इनकंसिस्टेंसी. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकंसिस्टेंसी? इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि डेटा इज नॉट कंसिस्टेंट, डेटा इज नॉट करेक्ट. तो अगर इस स्टूडेंट का मोबाइल नंबर लेट से 5 फाइल्स में प्रेजेंट था एंड अगर उसमें से हमने 4 में अपडेट किया और 1 में अपडेट नहीं किया, देन आवर डेटाबेस इज इनकंसिस्टेंट, दैट इज नॉट 100% करेक्ट. ओके, so that is the meaning of data redundancy and inconsistency. I hope you have understood the things, right? Second is difficulty in accessing the data. Difficulty in accessing data. अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास यूनिवर्सिटी डेटाबेस है, ओके, एंड फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी डेटाबेस यू वांट from this university database you want the information about from this university database you want the information about the students who have scored let's say A grade in all the subjects. Okay, in all subjects. Okay, in the current semester. Okay, ये आपको चाहिए इन करंट सेमेस्टर. तो अब ये आप कैसे लाओगे डेटा? बिकॉज जितने भी स्टूडेंट्स का डेटा होगा उसमें पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप उनके रिजल्ट में सिर्फ करंट सेमेस्टर का डेटा देखो, फिर उसके बाद आपको सभी स्टूडेंट में ये चेक करना पड़ेगा कि क्या सभी में ए ग्रेड है. अगर सभी में ए ग्रेड है तो ही उस स्टूडेंट को सिलेक्ट करो, राइट? तो अगर आपकी ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम होती तो आप एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू डेटा को एक्सेस करते. तो आपको क्या करना पड़ता? आपको अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम में एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करना पड़ता जो कि आपको ये डेटा रिटर्न करे, राइट? अब इसमें दिक्कत क्या है? पहली चीज़ तो कल को मेरी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, मुझे चाहिए द डिटेल्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लेट्स से फ्रॉम महाराष्ट्र. तो अब उसके लिए अलग से प्रोग्राम लिखो एक उस फाइल में, राइट? देन नेक्स्ट डे मुझे वापस चाहिए कि अब मुझे चाहिए द डिटेल्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड ए ग्रेड इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट. अब वापस नया एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखो, राइट? सो दैट इज नॉट अ वेरी गुड वे टू अप्रोच, राइट? सो ये डिफिकल्टी हो सकती है इन एक्सेसिंग द
डेटा, राइट। तो एक तो ये दिक्कत हो गई। दूसरा, ये तो सिर्फ हम यूनिवर्सिटी डेटाबेस की बात कर रहे हैं। अगर हम लेट से क्रिकेट की बात करें तो मुझे चाहिए कि गिव मी द नेम ऑफ ऑल द बैट्समैन हु हैव स्कोर्ड अ सेंचुरी इन द लास्ट 10 मैचेस, तो उसके लिए वापस अलग से प्रोग्राम लिखो, राइट। सो यू नीड टू राइट डिफरेंट प्रोग्राम्स फॉर ऑल रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि एवरी नाउ एंड देन आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स ऐड करने पड़ेंगे एंड मॉडिफाई करने पड़ेंगे, विच इज नॉट वेरी कन्वीनियंट। सो दिस इज डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग द डेटा। व्हाट इज थर्ड थिंग? थर्ड थिंग इज इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। So what is the meaning of integrity constraints? So I'll give you a simple example. We will look at different types of constraints in details later on. But हम constraints apply नहीं कर पाते डेटा में। For example, आपका जो भी डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन होगा, राइट, आपका जो भी डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन होगा उसमें एक फील्ड होगी HOD, राइट। नाउ ये जो है, लेट से आपके जो HOD है, जो कि ऑब्वियसली ऐसा ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, आपके ये जो HOD है इस डिपार्टमेंट के जितने फैकल्टीज है या तो जितने भी प्रोफेसर्स है उनमें से ही कोई होगा, राइट। देयर कैन नॉट बी अ पर्सन हु इज नॉट फ्रॉम दैट डिपार्टमेंट, राइट। सो ये कंस्ट्रेंट हो गया कि ये जो HOD है वो इन फैकल्टीज में से ही कोई होगा। तो इस तरह के कंस्ट्रेंट्स आप कैसे अप्लाई करोगे? दैट इज वन थिंग, राइट, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई इन द नॉर्मल फाइल सिस्टम, राइट। सो दैट इज इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। द फोर्थ वन इज एटॉमिसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिसिटी? सो एटॉमिसिटी का सिंपल मतलब होता है कि कोई भी ऑपरेशन है वो या तो कंप्लीटली परफॉर्म होना चाहिए या बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बीच में नहीं रुकना चाहिए, ओके। सो एनी ऑपरेशन मस्ट बी परफॉर्म्ड आइदर कंप्लीटली और not at all, okay। so for example, अगर मान लो कोई एक बैंक में अकाउंट है, लेट से अकाउंट 1 एंड देयर इज अकाउंट 2 इन सम अदर बैंक, राइट। अब इसमें से मान लो हमें 1000 रुपीज़ यहाँ पे सेंड करने हैं, ठीक है। यहाँ पे लेट से 10,000 रुपीज़ थे एंड लेट से यहाँ पे 3,000 रुपीज़ थे। सो आफ्टर डूइंग दिस ऑपरेशन यहाँ पे 9,000 रुपीज़ बचने चाहिए एंड यहाँ पे 4,000, राइट। नाउ लेट्स से कि यहाँ से अमाउंट डेबिट तो हो गया, मतलब यहाँ पे 9,000 आ गया, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट नहीं हुआ। तो यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है 9,000, यहाँ पे दिखा रहा है 3,000। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पूरा ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ से डेबिट हुआ बट क्रेडिट नहीं हुआ। तो इस तरह के ऑपरेशंस अलाउड नहीं है बिकॉज इट लीड्स टू इनकंसिस्टेंट डेटा, राइट। इट लीड्स टू इनकंसिस्टेंट डेटा, राइट। तो हमारा या तो कोई ऑपरेशन कंप्लीट होना चाहिए या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आधा हो गया है देन वी कैन ऑल्सो रोल बैक, ओके। जैसे कि काफ़ी बार आपके अकाउंट से 1000 डेबिट हो जाते हैं लेकिन दूसरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुए, तो आपको विद इन 48 आवर्स वापस मिल जाते हैं, राइट। अनदर प्रॉब्लम इज कॉन्करेंट एक्सेस प्रॉब्लम्स। कॉन्करेंट access problems, or you can say anomalies. Anomalies means the difficulties, okay। so what is the meaning of that? so अगर सिमिलर टाइम पे अगर कोई सेम डेटा मल्टीपल लोग एक्सेस कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। तो वो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो लेट से देर इज अ अकाउंट जिसमें कि 10,000 रुपीज़ है, right, and let's say I try to debit from that, and let's say my relative also tried to debit from that account, okay। now let's say मैंने डेटा रीड किया कि भाई अभी इसमें 10,000 रुपीज़ है, इन्होंने भी रीड किया कि 10,000 रुपीज़ है, उसके बाद मैंने इसमें से 500 डेबिट किया। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू राइट बैक 9,500 टू द डेटाबेस। मेरे रिलेटिव ने डेटा तो यही रीड किया था क्योंकि पहले मैंने डेटा रीड किया, लेट से फिर उन्होंने डेटा रीड किया, उसके बाद मैंने कट किया, उसके बाद उन्होंने कट किया, लेट से उन्होंने 1000 निकाले तो उन्होंने 9,000 अपडेट किया। अब मैं राइट करूंगा डेटा और वो राइट करेंगे डेटा,
तो अगर मैं राइट करता हूँ और उसके बाद वो राइट करता है तो फाइनल आंसर वुड बी 9000। अगर वो राइट करते हैं और उसके बाद में राइट करता हूँ देन फाइनल डेटा वुड बी 9500, बट बोथ इज रॉन्ग। प्रॉब्लम क्या हुई, मल्टीपल लोग एट अ टाइम सेम डेटा एक्सेस करने गए, तो पहले दोनों ने रीड कर लिया एक के बाद एक, राइट। पहले इन्होंने रीड किया, देन इन्होंने रीड किया, देन इन्होंने अपडेट किया, देन इन्होंने अपडेट किया, देन इन्होंने राइट बैक किया, इन्होंने राइट बैक किया। तो ये प्रॉब्लम है, राइट। तो ये कंकरेंट एक्सेस एनोमलीज इनको बोलते हैं, राइट। अगर मान लो मल्टीपल लोग एट द सेम टाइम सेम टिकट के लिए सेम सिनेमा की सीट बुक कर रहे हैं तो भी एक को ही मिलती है, मल्टीपल लोगों को नहीं मिलती, राइट। सो देर आर थिंग्स टू हैंडल, देर आर वेरियस वेज टू हैंडल दिस थिंग्स, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स इन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम एंड दैट्स वाई we need database management system which can handle all this, which can handle all these difficulties and some more, okay. These are some of the disadvantages which I told, which can handle all these difficulties, and hence it is important, and so we need to study database management system, okay. So I hope आपको what is database management system and why do we need to study it, इनका आंसर बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया है, okay. So that's all for this video. In the next video we will start with another topic. Thank you for watching.